भानुनगरमा रहेको छु र भानुनगरमा विगत केही दिन यहाँ 4 चक्के जुन वाहन रहेको थियो यो बीचमा जुन एउटा तनावको सृष्टि भएको थियो जसका निम्ति भक्तिनगर थानामा पनि उक्त उजुरी दर्ता भएको थियो र साथै जुन प्रकारले यहाँनिर घटना रहेको थियो उक्त घटनाको आधारमा उहाँले 7 तारिकको दिन एउटा उजुरी दर्ता भक्तिनगर थानामा गरेको थियो जसमा यहाँनिर जुन प्रकारले उहाँले जुन आरोप रहेको छ यहाँनिर उहाँले विषयवस्तु यस प्रकार दिएका छन् संभावित आपराधिक षड्यन्त्र सम्बन्धी औपचारिक उजुरी तथा तत्काल अनुसन्धानको अनुरोध जुन भक्तिनगर थानामा पुर्याएको थियो र साथै यहाँनिर उहाँले बताएका छन् भानुनगरका बासिन्दाहरू तल उल्लेखित व्यक्तिहरूद्वारा उहाँहरूको विरुद्ध योजनाबद्ध र कार्यान्वयन भइरहेको आशंकित यहाँनिर आपराधिक षड्यन्त्रबारे यहाँ ध्यान आकर्षण गराउनका निम्ति उक्त औपचारिक निवेदन दिँदैछौँ भनी उहाँले बताइरहेका छन्। साथै यहाँ जुन प्रकारले उहाँले शंकास्पद व्यक्तिको विवरण जुन दिएको छ यहाँनिर उक्त व्यक्तिको विवरण रहेको छ सतपत्रपाल र उनको परिवार र घटनाको विवरण अनुसार जुन उजुरी रहेको छ यहाँ उजुरीमा 448/26 5 जुन 2026 हेमन्त अधिकारी विरुद्ध तपन पाल सम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा यहाँनिर उनको परिवारसँग सम्मानजनक व्यवहार गरेका छौं तर अहिले उनीहरूको आफू पीडित देखाउने प्रयास गर्दै यहाँ सबैलाई झुटा मुद्दा फसाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो जुन मुद्दा रहेको छ यस मुद्दामा यहाँका जुन गाउँका छरछिमेकीहरू सम्पूर्णको यहाँ उपस्थित रहेको छ। जुन प्रकारले यो घटना रहेको छ यस घटनामा जुन ई रिक्सा चालकलाई उहाँका श्रीमती अनि चालकलाई जुन प्रकारले कुटपिट गरेका थिए र साथै उहाँहरू मेडिकलमा पनि भर्ती भएका थिए र यस विषयलाई लिएर हामी यहाँ बात गर्छौँ। यहाँ पाडा यो क्षेत्रका जुन मानिसहरू रहेको छ उहाँहरूसँग बात गर्दै हामी जानकारी लिन्छौँ। वार्ड के सब निवासी बोल रहे हैं तो इधर जो मतलब 5 तारीख को जो बोल रहे हैं मतलब न्यूज में बोलिए ऐसे बोलिए जो है मेन मतलब जो है हेमंत अधिकारी और जो तपन पाल का जो झगड़ा गुड़ा हुआ उसमें हम लोग का कुछ वो मैटर नहीं है। हम लोग का जो है वो समाज में আমাদের যে মানে সমাজে এই যে আমাদের গলি বা পাড়ার কথা বলেন এটার জন্যই আমাদের ব্যাপার কিন্তু ওদের ঝগড়ার সঙ্গে আমাদের কোনো লিঙ্ক নেই। এখানে ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল কি হয়েছিল আমরা ছিলাম দেখেছি ওটা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের পাড়ায় এরা অনেক দিন থেকেই অনেক অসামাজিক কাজকর্ম চলে আমরা বলি বা এই ব্যাপারে বলি অনেকেই বলে আশেপাশে বাড়ি আমরা বলি কিন্তু ওরা ওই জন্যই আমাদের উপরে ক্ষোভটা বেশি। আর ও যে বললো ওরা যে বললো যে না ওনাকে অ্যারেস্ট করার পরে আমরা বেশি রাগ করেছি বা ওদের উপরে ঝগড়াঝাটি বা কিছু ব্যাপার ওটা কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই। এখানে ভিডিও আছে ওরাই নিয়ে গেল অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল তবুও আমরা ওদেরকে কিছু বলিনি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অধিকারীর বাড়ির লোক আমাদের বাড়িতে এসেছিল আমাদের কাছে যে কি করব কি ব্যাপার আমরা বলছি যে এটা পাড়ার ব্যাপার আমরা সবাই মিলে বুঝিয়ে নেবো মানিয়ে নেবো তোমরা চিন্তা করো না এটা হয়ে যাবে ঠিক ওটা শেষ। ওরা যে এত কেস টেস্ট করেছে আমরা ওটা কিছু বলিনি। তারপরে যখন যেদিনকে অ্যারেস্ট করা হলো সেদিনকে আমাদের নিজেদের বাড়ির সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি কি হলো কি ব্যাপারটা জানার জন্য বোঝার জন্য ঠিক আছে তবুও কিছু বলিনি। তারপরে এরা দুই বোন দীপা পাল কোয়েল পাল তারপরে ওরা ছিল ওরা আমাদের পুরো ক্যামেরা করছে সবাইকে ক্যামেরা করে যে কোনো ব্যাপারে হোক ভিডিও করবে মোবাইল দিয়ে আর ক্যামেরা করে বলবে এরা ঝগড়াঝাটি করে এরা আমাদেরকে মারতে আসছে জ্বালিয়ে দিবে বাড়িঘর উল্টা পাল্টা এগুলো মানে কথাবার্তা বলে তবুও আমরা কিছু বলিনি কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি আমাদের মুখের সামনে এইভাবে ভিডিওটা আছে আপনাদের দেখতে পারবেন মুখের সামনে এসে ক্যামেরা নিয়ে এসে বলছে এইভাবে আমাদের বিনা পারমিশনে তাহলে আমরা তো বলবোই তুই কেন এটা আমাদের ভিডিওটা করছিস কি কারণটা কি ওটা বলাতেই এইটা ঝামেলাটা একটু বাড়লো তবুও আমরা কিছু বলিনি ওদের বাড়িতে গিয়েও আমরা কিছু বলিনি বা কিছু নি এটা নিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু এটা যে ওরা বলেছে আমাদের পাড়ার লোক সবাই গিয়ে ওদের বাড়ির উপরে হামলা বা কিছু আমরা চাই যে দেখেন এই যে অসামাজিক কাজ যেমন দারু ব্যবসা ড্রাগসের ব্যবসা এই ঝগড়া মারামারি অনেক আড্ডা হচ্ছে বাইরের থেকে লোকজন এসে এখানে ভিড় করছে আমাদের পরিবেশটা খারাপ হচ্ছে বাড়িতেও হচ্ছে রাস্তাঘাটও জ্যাম হচ্ছে বাড়িতে বা আশেপাশের লোকজনের খুব প্রবলেম হচ্ছে ওটাই আর কি চাচ্ছি যে ওদের মেন সমস্যা এটাই যে আমরা ওগুলো নিয়ে বলি তাই ওদের এটা ক্ষোভ ওই জন্য ওরা মিথ্যা বলে আমাদের ব্যাপারে এগুলো বলেছে যে জমির ব্যাপার বা এটা ব্যাপার ওটা ব্যাপার এগুলো বলেছে এগুলো কোনো ব্যাপার নেই। মেন কারণটাই হচ্ছে আমরা ওদের ওই অসামাজিক কাজকর্ম করে ওরা ওই ব্যবসাগুলো আগে দারুর ব্যবসা করতো ওটা আমরা সবাই মিলে বলে টলে বন্ধ করেছি ওটা একটা ক্ষোভ। তারপরে বাড়ির সামনে জুয়া টুয়া বসতো পুজো বা অন্য ব্যাপারে হোক জুয়ো টুয়ো ওগুলো খেলা হতো আমরা ভিড় করতো ঝগড়া মারামারি হতো বলে আমরা বলতাম ওটা তো বলবোই তো ওটার জন্য একটা ক্ষোভ। তারপরে আবার এখন শুরু করেছে ড্রাগসের নিজেও एडिक्टेड নিজেও করে पॉल के परिवार वाले ना हाँ परिवार वाले मतलब वो जो है ना तपन पाल उसके पापा मेन है वो लोग सपोर्ट करते हैं
हाँ 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 करते हैं वो मतलब फैमिली का सब लोग है বাড়ির লোক সবাই সাপোর্ট করে বাড়ির লোক সবাই সাপোর্ট করে উনি করে ওরা সবাই সাপোর্ট করে দারু টারু ব্যবসা তো ওরা সবাই ফ্যামিলি মিলে করতো ठीक है, वो लोग अगर हाँ सार्वजनिक कार्य करते हैं, हाँ अगर हाँ वो ওটা व्यवसाय বলার करते- জন্যই इसका अगर व्यवसाय करते हैं तो इसका सबूत उन्होंने कब और कहाँ देखा, ये काम करते हुए आपके पास कोई इसका पुख्ता सबूत है? पुख्ता सबूत तो देखिए वैसे तो नहीं मिलता है लेकिन हम लोग ऐसे बहुत बार सब लोग पूछ सकते हैं सब लोग कोई देखे तो सबूत होना चाहिए ना, मुंह से तो कोई भी बोल सकता है, पारा का सब लोग भी बोलेगा, तो सबूत तो कुछ होगा ना, कोई वीडियो है आपको उनके साथ मारपीट हुआ बोल के वो वीडियो की है, तो आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसके का जो है वो इस तरह का काम करते थे? मतलब करते अभी तक वो सब वैसा तो वीडियो नहीं है था ना वो सब तो वीडियो थोड़े मिलेगा ऐसे ओपन क्या करते इस मामले में कहीं पुलिस ने उन लोगों को पुलिस में नहीं 2 दिन पहले पूरा ड्रग्स खा के रास्ते में गाली गलौज कर रहा था तो इन लोग सब मिलके वो आंटी लोग मिलके एक भैया भी मिलके उनको डांटे थे आपने बोला मारे वो भी अवैध काम करते हाँ। हैं, तो कोई इस तरह का कोई पुलिस कार्रवाई हुई है उनके ऊपर? अगर अगर अवैध इससे करते पहले हैं, हुए थे हुआ था दारू उरू बेचते थे ना तब पुलिस लोग आए थे इसलिए तो बंद हुआ पुलिस कभी पकड़ के ले इससे गई थी? पहले भी- कभी एफआईआर हुई? इससे पुलिस पहले का देखिए, ध्यान आई यहाँ पे किसी प्रकार का पुलिस- जो हाँ, यहाँ मैं पे बताता हूँ। कार्रवाई हुई है? पुलिस इससे पहले आया था पाड़ा में बहुत बार, वो लोग को भी समझा के गया है कि ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग ने तब क्या किया कि पाड़ा का लोग है तो ज्यादा झमेला ना हो, इसलिए हम लोग ने बोला कि आप लोग ये सब बंद कर दो। वो दारू वारू लेके भी हुआ झमेला, फिर ये जो आपका क्या बोलते हैं जुआ का अड्डा होता है वो लेके भी हुआ झमेला। तब भी हम लोगों ने बोला पाड़ा का लोग है, उनके घर में उनका घर का बाहर वहीं पे जहाँ पे ये टोटो लेके जितना झमेला है वहीं पे सब झमेला। इसी लोग के लिए ये पूरा पूरा पाड़ा का नाम खराब हो गया। आप आए, इससे पहले भी एक भानुनगर में झमेला हुआ था वो पैसा को लेके कि पैसा नहीं दे रहा है, वही फैमिली था, उन्हीं लोग का फैमिली लोग था जिसमें वो किडनैप का चार्जेस लगाया था किसी विरुद्ध के बारे में, जो प्रकाश नगर के एक अंकल है उनके बारे में पैसा लेके बाद में नहीं दिए वो लोग, है ना। संजना मजुमदार ने ये सब किया बताइए, लेकिन बहुत बड़ा झमेला हुआ भानुनगर में। आप लोग जितना भी सुनते हैं कि भानुनगर खराब है, ये सब चीज हो रहा है, ज्यादातर चीजों में इन लोग को आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने एक जीडी करके आया 1 हफ्ता पहले कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, पाड़ा का लोग को घर से निकल के मोबाइल से वीडियो कर रहा है, इसका दोनों लड़की वीडियो कर रहा है और सबको बोल रहा है सबका नाम पे केस देंगे जो भी हम लोग के बारे में बोलेगा। उसका भी सारा वीडियो हम लोग के पास है, आप लोग बोलेंगे हम लोग दिखा देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा कहानी शुरू हुई है उनके परिवार को मारा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो आप बोल रहे हैं, प्रशासन हाँ। से ऊपर जाकर हाँ। किसी फैमिली को इस तरह पीटना कहाँ तक संवैधानिक है? ठीक है, ये जो आप बात बोल रहे हैं ये पूरा पूरा इसका कोई भी प्रूफ नहीं है और ये पूरा पूरा झूठा है बात। উইটনেস আছে हाँ। সকালবেলা যে দেখছে हाँ। 5:30টার সময় ये आई विटनेस भी यहाँ पे है, आप पूछ सकते हैं जिन्होंने ये घटना होते हुए देखा है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या घटना है। और उन लोग जो बता रहे हैं कि हमारा ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो लोग घर आ रहे हैं और रोज जा रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें उन लोग बता रहे हैं कि हम लोग उन लोग को चढ़ाव होने जा रहा है। पाड़ा में इतना आदमी देख रहे हैं, हर एक घर में आदमी है, हर एक घर का आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। कल उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर बताया कि उनको धमकी दिया जा रहा, उनको रेप किया जाएगा, उनको मार दिया उनके जाएगा, पास घर से उठा लिया जाएगा, ये बता रहे हैं। पूरा झूठ है, ये ड्रामा है पूरा, उन लोग का 2 बहन का ड्रामा है। वो 2 बहन पूरा पाड़ा का, इतना आदमी, एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकता है। घर में इतना घर है, यहाँ पे 40-50 घर होगा, हर घर में जाके आप लोग अगर रिपोर्टिंग करेंगे, उन लोग के बारे में सुनेंगे तो उन लोग सब एक ही बात बोलेगा जो हम लोग अभी बोल रहे हैं। और आप यहाँ पे एक बार देख ही सकते हैं कितना आदमी लोग है, यही है। जिस तरह से उनके फैमिली को मारा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनके फैमिली को तो कोई नहीं मारा इधर से, मतलब पहले के बात बोल रहे हैं। आपको सारा विटनेस तो यहाँ पड़ा हुआ है, आप विटनेस से स्टेटमेंट नहीं दीजिए। जब उनको मारा गया था तब हम तो नहीं थे, लेकिन जो थे यहीं पे है, उनसे बात कर लीजिए। क्या है? मैंने सुबह 5:30 बजे हम इधर आया था मनी करने के लिए, तो इधर खड़ा था तो इनका पति गाड़ी में थे और वो जो तपन पाल वो टोटो से निकल रहा था, तो तपन पाल का साथ थोड़ा वो बात हो रहा था। बात होते होते বাংলায় বলছো মানে কথা বলতে বলতে গাড়িটাতে ধাক্কা মারছে, এনার হাজবেন্ডের গাড়ি ধাক্কা মারছে, তেনার হাজবেন্ড বলে গাড়িটাতে ধাক্কা মারলি কেন, এই নিয়ে তর্ক হতে হতে এই তপন পাল পুরো মারছে এনার হাজবেন্ডকে, পুরো মারছে মানে ঘুষির পর ঘুষি মারতে মারতে এমন ভাবে গলা টিপে ধরছে, ছাড়ছেই না। তো এ আবার সাইডে দাঁড়ায় ছিল, আমি একে বলছি তুই দেখে আছিস, তুই ধরবি না তোর স্বামীটা মরে যাবে। আর এই টোটোওয়ালাকে আমি পিছন দিকে টানছি ভেবে, আমি জামাই তুমি সরে আসো, কেন ভেবে মারছো, ও তো মরে যাবে। আর ওর বরটা একটু নাটা আছে আর ও লম্বা, এ তো এমন ভাবে গলা ধরছে ও ছাড়তেই পারছে না। এই হলো কথা। তারপরে হচ্ছে
আর ওনার হচ্ছে বউ আর দুটো মেয়ে আসছে বাড়ি থেকে, এসে যখন পুরো যুদ্ধ লাগার পরে তখন কি করলো, একদম এনার ভরকে পুরো মারতেছে, কোয়েল পাল আর দীপে পাল পুরো মারতেছে, তুলি পাল, ওরা মা দু মেয়ে। হ্যাঁ, মারতে মারতে কি করলো, ওই হস্তে হস্তে ধাক্কাধাক্কি করছে, কি নিয়ে হচ্ছে? ওই গাড়িটা নিয়ে ঝামেলা। গাড়িটা কি ওনার বাড়ির আগে ছিল? হ্যাঁ, ওই যে গাড়িটা ওখানে দাঁড়ানো আছে। না না, গেটে নেই, সাইডে আছে, দেখেন এনার গাড়ি ওই যে ওখানে আছে, ওই যে ওখানে তো আছে। এর আগে কাউন্সিলরকে নিয়ে ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু কাউন্সিলরের কথা শুনে এখন ওই যে ছেলে বদ্যি বানায়নি, এই ছেলে এখনো বানানো হয়নি। ওনার টোটো যখন বাড়ি করতে নিছে, আমাদের গাড়িতে 1 মাস থেকে নেই, যখন টোটো বাড়ি করতে নিছে তখন টোটোটা আমাদের গাড়িতে ইচ্ছে করে এসে লাগাই দিছে। আপনারা দেখেন গিয়ে অনেকখানি রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে এত বড় একটা বালুপাথের ট্রাক যায়, সে রাস্তা দিয়ে টোটো বাড়ি করতে আমাদের গাড়ি লাগে ইচ্ছে করি। সেই দিন আবার 5টার সময় টোটো বাড়ি করছে, ইচ্ছে করে লাগাই দিয়ে, আর আমার বরের সাথে পুরো ইচ্ছে করে। যখন আমার বর বলতে যায় তখন আসে মারধর করে, গালাগালি করে। দোষ, উনি প্রথমে মারছে, তখন ওনার পুরো স্ত্রী মারছে, পুরো ওনার স্ত্রী আসে আমার বরকে ধরে, ঘুরপার করতে করতে উনি পড়ে গিয়ে মাথায় পাথর লাগে। তখন আবার ওনারা দোষারোপ করে যে আমার স্বামী নাকি ওনার স্ত্রীকে পাথর দিয়ে মারছে। কেউ মারে নাই। ভক্তনগর কোন রকমের থানা অভিযোগ দায়ের করেছিল? থানা অভিযোগ দায় করছে, আমরা তো অত ভাবতে পারিনি যে এরকম কেসে আগে কোনোদিন পড়ি নই। ওনারা আগে গিয়ে থানার এসে করছে, আমরা একটু দেরিতেই করছি। পুলিশ পরে যে ওনার কাছে কেস হয়েছে, কিন্তু আমরা তো ওগুলো ঝামেলায় পড়িনি। আমরা ভাবছি পাড়ার এসে পাড়ায় মিটামিটি হয়ে যাবে, এর আগেও অনেক কয়বার হয়ে গেছে। আমরা ভাবতে পারিনি যে ওনার থানায় গিয়ে কেস করে যাবে। তারপরে যখন বুঝতে পারি তখন আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে যাওয়া। তারপরে দিয়ে ওনার নামে, আমাদের নামে তো আগেই কেস করে, ওনাদের নামে কেস করা হয়েছে। এখন কি চাই না, এখন আমার বরকে জেলে নিয়ে গেছে, এখন মিথ্যা কেস দিয়ে। হ্যাঁ, মিথ্যা কেস দিয়ে নিয়েছে, ওনার পড়ে গিয়ে পাথর এসে লাগছে। আর উনি বলতেছে আমার বর বলে ওনার স্ত্রীর গায়ে বলে ইসে করে দিছে। ওনার যে আছে, বউ আছে, ওনাকেও তো চোট লাগছে। ওই তো পড়ে গিয়ে তো চোট লাগছে, উনি এখন মিথ্যা। হ্যাঁ, উনি তো যে সাক্ষী আছে, সকালবেলা উনি তো সাক্ষী তো আছেই। আস্তে আস্তে করলে পড়ে গেলে লাগবে না, নিচে পাথর ছিল, রোডের ভিতরে পাথর ছিল, পাথরটা ওনার কপাল লাগছে, কপালে লাগে। আমি দেখছি ওখান থেকে উঠতেছে, উঠে দেখি ওর কপাল ফাইটে রক্ত বেরাচ্ছে। ওখানে তো কেউ মারলো না, আস্তে আস্তে করলে গেলে পড়েই যাবে। আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকে। আমি হচ্ছে হেমন্ত মালিকের, হেমন্ত অধিকারীর বাড়িতে ভাড়াটিয়া। তো তপন পাল আর হেমন্ত অধিকারীর সাথে ঝামেলা হয় ভোর 5টার দিকে। তো অত সকালে কেউ উঠছে ঘুম থেকে, কেউ উঠে নেই। তো তারপরে হচ্ছে ঝামেলাটা হচ্ছে, তো তপন পাল অনেক বড় একটা বোল্ডার নিয়ে আসে হেমন্ত অধিকারীকে মারার জন্য। তো ওইখানে তখন আমার স্বামী ওখানে ছাড়াতে যান, ছাড়াতে গিয়ে আমার স্বামীর নামে কেন গেছেন ওখানে এর জন্য কেস করে দিয়েছেন। আমি থাকি ওনাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া। বিকেল বেলা আমাকে আসে, ওনারা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। হ্যাঁ, আমাকে এসে মারার জন্য বাড়িতে পারলে চুলের মুঠি ধরে বের করে, হাত ধরে টানা ছাসরা করে বাড়ির রাস্তার সামনে বের করে মারবে আমাকে। আমি ঘরে চলে যাই। তারপরে হচ্ছে এখানে আমাকে পাইনি, তো আমার বর সে তপন পালের সে বৌতুলি পাল, তারপরে হচ্ছে কোয়েল পাল, দীপা পাল আর সঞ্জনা মজুমদার, এই কয়েকজন গেছে মিলে আমাকে মারতে। তো আমাকে এখানে পাইনি, তো আমার বর টোটো চালায় নাইস ক্লাবের ওখানে, টোটো স্ট্যান্ড। আমার বরকে ওখানে কয়েকটা ছেলে, সুভাষ মন্ডল আর কয়েকজন ছেলে, তপন পাল, ওদেরকে নিয়ে আমার বরকে গেছে ওখানে মারার জন্য। তো ওখানে পাইনি, তো তারপরে হচ্ছে ওনারা আমার বরের নামে কেস করে দিয়েছে। এটা আমার ইসে আছে, এটা ডায়েরি করে, এটা আমরা পরে আমরা একটা ইসে করেছি। উনি স্বামী যেহেতু আমার না বাঁচায়, তখন ওই পাথরটা দিয়ে ইটটা দিয়ে মাথায় বাড়ি দিলে আমার স্বামী তখনই ডেড হয়ে যেত। উনি বাঁচাইতে গিয়ে যেন ওনার স্বামীর নামেই কেস দিয়ে দিয়েছেন, আমার আবার উল্টে মারতেও গেছেন। আরো অনেক নোংরা কেস দিয়েছেন। আমার বউর সঙ্গে তো ঝগড়া হয়েছে। এই দুইজন যে মেয়ে আছে, এটার উপরে কি অভিযোগ? এই মেয়ে দুটার উপরে একটাই অভিযোগ, ওরা কালকে যেটা নিউজ আমরা দেখেছি যে ওনারা আমার ফটো ছেড়েছে, ঠিক আছে, বিনা কারণে। আমি ঝগড়া করতেও যাইনি, আমরা সাইডে দাঁড়িয়েছিলাম, আমরা পাড়ার লোক সাইডে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার ফটো কেন ছাড়বে, এটাই প্রশ্ন। আমার ফটো কেন ছাড়বে? পাড়ার লোক আমরা মারতে গেছি, সেই ভিডিওটা আছে আমার কাছে, দেখবেন আপনারা। এই যে ये जो हाथ में फोटो लिए कौन है? দীপা পালে।
दीपा पाल दिखाओ फोटो ले लो। दीपा पाल है ये, देखिए। गलत गलत मीडिया में गलत गलत न्यूज दे रहा है। वो लोग कह रहे हैं हम लोग घर पे मारने गए थे। वीडियो पे देखिए, वीडियो देखिए, हम लोग वीडियो कर रहे थे। वो लोग वीडियो कर रहे थे, हम लोग भी वीडियो। नहीं, उसके घर में, रास्ता में हमारे घर में वीडियो करके गया था, गुस्से में हम भी वीडियो किया। रास्ता में ये सब रास्ता में आप लोग दूसरा घर का आगे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वीडियो किया ना, वीडियो कर से वीडियो किया। हम लोग जब वीडियो किया, वो लोग सब डर से घर में घुस गया। क्यों घुसा था घर में? देखिए, हम लोग अपने घर के सामने ही थे। देखिए, ये कहाँ पर है? यहाँ से वीडियो हो रहा है। देखिए, घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है? हम लोग का घर कहाँ है? आवाज तो दे। और उनके जब भाषा देखिए मेरे से कैसे बात कर रहे ये करना चाहिए। हैं? देखिए मेरे से कैसे बात कर रहे हैं? वीडियो कर रहे हैं। हम लोग कोई नहीं वीडियो कर रहे हैं। देखिए हम लोग भी वीडियो कर रहे हैं। कौन वीडियो किया पहले? देखिए आप लोग, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हम हुआ लोग है। तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, इतना पारा का आदमी सभी तो 100% सही बोल रहे हैं। उनके ऊपर ये देखिए तापुन पाल है। हाँ, इन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ भी झगड़ा किया था 15 दिन आगे, तो मैंने सोचा पारा का है तो मिल जाएगा, सब म्यूचुअल हो जाएगा, ऐसा तो होते रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का तो कोई दोस्त नहीं था, इनका ही दोस्त था, क्योंकि एनी टाइम नशा में रहते, एनी टाइम नशा में रहते। तो नशा करके वो गाली गलौज कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ऐसे क्यों गाली दे रहे हो, किसको दे रहे हो भाई? तो मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट बोला तुमको दे रहे, क्या हुआ? तो उसके बाद उसी में बस पूरा विवाद शुरू हो गया, पूरा गाली गलौज कर रहा है। उल्टा मेरा हस्बैंड का पूरा शर्ट फाड़ दिया, अपने कपड़ा फाड़ दिया। उन लोग का तो ताकत भाई, दूसरा नशा में रहता है, उन लोग का तो जोर ज्यादा है। तो उसके बाद मैं तो नहीं निकली थी, क्योंकि अब लेडीज हूँ। तो फिर मेरा बेटा लोग सभी पारा का जितना है सभी जन आए, आके मेरे हस्बैंड को कवर किया, हमने बचाया उनको। वो इतना इन लोग ना इतना बढ़ गया है कि हम लोग बता नहीं सकते, एकदम पूरा जीना हराम कर दिया है सबका। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मीडिया को आप लोग सब सही खबर दिखाइए, एक तरफा मत सुनिए, सभी का सुनिए, कौन सही है कौन गलत है, इसका विचार कीजिए बस। इसके लिए तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा ना मीडिया में। जी सर, नहीं अब उस टाइम हम लोग का तो ऐसा बुद्धि नहीं था ना सर। खोजने नहीं जा सकेंगे ना, हाँ आपको सर। आना पड़ेगा ना, आपको तो वही, हाँ सर, दोनों पक्ष, हाँ। वो लोग जो अब उन लोग का जैसे हम लोग का दिमाग नहीं चला, हम लोग सोचे अपना पारा में तो होते रहता है, चलो हो गया उस म्यूचुअल हो जाएगा। लेकिन इतना तो हम लोग को नहीं पता था ना, इन लोग इतना मास्टरमाइंड दिमाग होगा कि न्यूज में देगा, फिर थाना में उल्टा केस करेगा, यहाँ पे सब उल्टा बड़ा केस दे दिया। और हम लोग के ऊपर भी देखिए सामान्य झगड़ा थे, सामान्य मारामारी थी। हम है अदिति मदर, ये भारतनगर का बासिंदा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हम लोग पारा का बासिंदा है, अगर पारा में झमेला होता है इतना, हाँ, तो हम लोग पारा का बासिंदा है, देखने तो आएंगे ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उन लोग मेरे को उधर से गाली दे रहा है, तू हिजड़ा है, पारा का आदमी अभी क्या देखने आया है, कचरा है, मेरे को ऐसे बोल रहा है। हम पारा में रहता है, कोई झमेला हो रहा है, हम लोग देखने के लिए तो आएंगे ना। इस तरह बोलने का कारण क्या है? नहीं पता, हम लोग आके देख रहा था उधर, मतलब हम लोग क्यों आया देखने के लिए, उन लोग का वही बात है। हम एक स्टूडेंट है, हम गाना गाते हैं आकाशवाणी सिलीगुड़ी में, अभी उन लोग हम लोग का फोटो दिखा रहा है, हम लोग का वीडियो दिखा रहा है, मेरा करियर में इफेक्ट पड़ेगा ना इसका। बोलिए मेरे को एग्जाम देने नहीं देगा। हाँ, फिर मेरे को सब कोई रिलेटिव्स लोग कॉल करके बोल रहा है तेरा फोटो दिख रहा है, तेरा वीडियो दिख रहा है। मेरा तो परमिशन बिना मेरा वीडियो नहीं कर सकता है, मेरा फोटो नहीं डाल सकता है। बोलिए मेरा तो करियर में ऐसे बहुत दिक्कत पड़ेगा। हाँ, ये सब कुछ उन लोग को बंद करना पड़ेगा। फिर उन लोग बोल रहा है, हम लोग बोले उसको थप्पड़ मारेंगे, मतलब झूठा झूठा हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है। हाँ, घर जलाने गया, उन लोग का कोई मतलब वो है, प्रूफ है। हाथ से मारा था, वीडियो है उसके पास। मैं भी एक स्टूडेंट एमए पढ़ रही हूँ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में, मेरा प्रोफेसर कॉल करके कह रहे हैं आप एक स्टूडेंट होके क्या कर रही हो, क्या कहूँ मैं अभी, बोलिए। तो चप्पल लेके मारने की अब फोटो वो झूठ है, चप्पल दिख रहा है मेरे हाथ में, चप्पल नहीं है मेरे हाथ में चप्पल दिखा आपने, चप्पल नहीं है, चप्पल देखा आपने, वीडियो में देखा। तो वो फोन झूठ मत बोलिए, चप्पल नहीं है, फोन है। मैं यहाँ से वीडियो दिखा रही हूँ। झूठ मैं बोल रहा हूँ, नहीं गलत बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं वो आप। लोग झूठ बोल मैं रहे बोल रहा हूँ, ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं? झूठ मैं बोल रहा हूँ। आप झूठ नहीं बोले, दिखाई दिया, वही तो पूछ रहा हूँ आपको। और ना चप्पल दिखा है, चप्पल दिखा है, चप्पल दिखा है, फोटो में वीडियो में चप्पल दिखाया गया है, कभी भी देखा है। जैसा कि कहा कि महीनों से जो है उस परिवार को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग परेशान थे, तो यहाँ के वार्ड काउंसिलर मतलब क्या कुछ सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। उसका घर वाला हर महीने में कुछ नहीं किया इसमें। ना उन लोग आता था, मीटिंग चला जाता था उन लोग का घर में ना, मतलब वो घर में ही उन लोग का इतना झगड़ा होता है, घर वाला ही घर के लिए मीटिंग बुलाता है, मतलब अपना घर वाला ही। काउंसिलर अनेक पीछे कोर्ट से, काउंसिलर भी बहुत बार आया है,
लेकिन वोट नहीं हुआ क्योंकि उनका घर वाला घर से ठीक है। अब किसी दिन ये देखिए वीडियो देखिए, उन लोग अगर उन लोग का कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोग ऐसे क्यों घर में घुसेगा? देखिए इस काउंसिलर अनेक बार दर्शक बिन्दा हामीले निरन्तर यहाँका जानकारी हजुर समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्यौं। जुन प्रकारले यहाँ जुन पीडितले आफ्नो जुन उजुरी दिएका थिए भक्तिनगर थानामा र साथै उहाँले कोर्टमा हिजो मात्र हामीसँग पनि बात गर्दै उक्त विषयमा जानकारी दिए थिए। तर यहाँनिर जुन गाउँ घरका मानिसहरू रहेको छ उहाँलाई दोषाइरहेका छन्, किनभने उहाँहरूसँग जुन प्रकारले यो जुन काण्ड भएको छ यो उहाँले मिथ्या भनिरहेका छन्। तर यहाँनिर उहाँहरूले दिएको जुन प्रुफ फोटो अनि भिडियो र यहाँनिर उहाँले भरभली यस विषयमा बताइरहेका छन्। तर यहाँनिर मामिला के छ, यो मामिला प्रशासनको हातमा रहेको छ र प्रशासनले नै सम्पूर्ण यहाँ विषय वस्तुमा ध्यान दिनुपर्नेछ। र यहाँ जुन प्रकारले घटना रहेको छ यस घटनामा प्रशासनले ध्यान दिँदै यहाँका जुन वार्ड पार्षद रहेको छ उहाँले ध्यान दिने हामी पनि उहाँहरूसँग आग्रह गर्छौँ। र यो जुन तनाव रहेको छ यसलाई जति सक्दो सुधार गर्नु प्रयास गर्ने भनी हामी पनि निवेदन टक्राउँछौँ। र साथै जुन प्रकारले यो घटना रहेको छ यहाँनिर सम्पूर्ण जुन क्षेत्रका जुन मानिसहरू रहेको छ र जुन प्रकारले उहाँहरूको यहाँ उपस्थित रहेको छ र उहाँहरूले जुन यी मानिसहरूलाई जुन प्रकारले न्युजमा आएर खबरमा आएर बताइरहेका छन् र यहाँको कथा नै अर्कै छ देखिन थालिएको छ। र भक्तिनगर थानालाई हामी यस विषयमा पाइला चालिदिने आग्रह गर्छौँ र अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।